the people of Arunachal in general and particularly Nisi community, how Mr. Legend Gyadil misusing the power and position of Ansu. Mr. Legend Gyadil, जब से अंशु प्रेसिडेंट बना है वो निशी को किस दिशा में ले जा रहा है और निशी को किस तरह प्रमोट कर रहा है। अंशु प्रेसिडेंट जो हमारा प्रेसिडेंट को एंटी निशी डिक्लेयर करता है। माय नेम इज राकेट इची, spokesperson all Kamla District Student Union, and I'm accompanied by my right AGS all Kamla District Student Union, Mr. Tamar Bopi, and in my left Mr. Kawak Tala, IPR Secretary, all Kamla District Student Union. Ladies and gentlemen, we are here for very important, to address very important press briefing. We will begin with formal readout of the press release reply letter made by our President in response to President Ansu. To the President and all GC Students Union Ansu, subject Farawise reply to order dated 24 July 2025 regarding expulsion and declaration as anti-GC and anti-union. In reference to your order dated 24/07/2025, I, Sri Tam Promi Fall, President All Kamla District Students Union Akatsu, compelled to submit this farawise reply in reference to the order which expels me from the union and declare me as anti-GC and anti-union. The said order is fraught with gross procedural lapses, constitutional misinterpretation, wrongful application of provisions, and personal vendetta, thereby rendering it arbitrary, unconstitutional, and void ab initio. I hereby submit the following factual clarifications. To begin with, the said expulsion order has been issued without adhering to the principles of natural justice. No proper inquiry or hearing was conducted, and I was not served with any official show cause notice seeking my explanation before pronouncing such a severe disciplinary action. The Constitution of Ansu nowhere provides arbitrary powers to the President to expel any member unilaterally, that too bypassing the Executive Council, which is the supreme decision-making body of the Union. Such unilateral action amounts to abuse of authority and is a clear violation of the democratic principles that Ansu stands for. Secondly, referring to your order dated 25 June 2025 regarding the dissolution of all Raga Dolmo Camporejo Area Students Union Arkasu, I wish to remind you that the same was unconstitutional and illegal. Arkasu had a valid tenure of 1 year remaining as per their bylaws. Dissolving a functional and tenure valid student body without any constitutional ground amounts to arbitrary overreach. Furthermore, as per Part 9, Article 39, Clause A, B, and C of the Arkasu bylaws, Arkasu is a direct federal unit of Akatsu. It does not entertain direct interference from any external body other than Akatsu, which is the apex student organization of the Kamla district. Furthermore, your order invoke Article 17, Clause 1, Sub-Clause 8 of Ansu Constitution, which states, Ansu shall constitute a caretaker committee from among the reputed student activists of particular defunct, sub-judice, controversial PSUs to oversee the recommendation of candidates from such defunct, sub-judice, controversial PSUs panel. However, the validity of such committee shall co-terminus with the conclusion of Ansu General Conference election, which is applicable only in cases involving defunct, sub-judice, or controversial PSUs. In the case of Arkasu,
None of these conditions applied, making your order not only unconstitutional but also a blatant misapplication of ANSU's constitutional provisions. A detailed explanation regarding this was already submitted to your office through our letter dated 11 July 2025, yet it seems to have been ignored. Thirdly, regarding your declaration of me as anti-NEC and anti-union, the grounds cited in your order are baseless and reflect personal bias rather than constitutional merit. The first allegation pertains to my alleged defiance of ANSU's directive regarding ARCASU. However, I had already provided a clear and detailed explanation regarding the constitutional validity of ARCASU's tenure and its independent functioning as per its bylaws. Upholding the constitutional rights of a federal unit cannot be termed as a defiance, rather, it is my duty as the president of ACATSU. The second allegation relates to my issuance of so-called notices to 4 executive members of ACATSU. Here, ANSU does not possess the authority to interfere with the internal disciplinary matters of ACATSU. The so-called notices were issued strictly in accordance with ACATSU's constitutional rights, as these members had indulged in gross misconduct, direct contempt of the Central Executive Members meeting, the highest decision-making body of ACATSU. Furthermore, these members tarnished the image of the union through their irresponsible conduct on social media platforms. The issuance of a so-called notices was mild disciplinary step, and they actually deserve stringent disciplinary actions for bringing disrepute to the union. Fourthly, your order have also cited Article 3, Clause 15 and 16 of ANSU Constitution. However, it is crucial to point out that these clauses merely provide definitional clarity regarding these terms and do not confer any punitive authority to declare or expel individuals. These clauses do not empower the President of ANSU to declare or expel anyone as anti-NEC or anti-union. Expulsion of any members requires adherence to a due process involving inquiry, recommendation by a disciplinary committee, and approval of the Executive Council, none of which were followed in my case. Additionally, the Constitution of ANSU, according to Article 9, Clause 5, which states that any person who challenges the order, notification of ANSU in any court of law shall be decorated as anti-NEC, anti-union, he shall be seized of his her primary membership of the union. I have not challenged any ANSU order in a court of law. Thus, the ground on which I have been declared anti-NEC, anti-union is factually incorrect, constitutionally invalid, and appears to be motivated by personal vendetta. Furthermore, it is pertinent to remind you that ACATSU is a direct federal unit under APSU, the apex student body of the state. ANSU, while being a prominent and respectable organization, has no constitutional jurisdiction to expel or label a federal unit of APSU as anti-NEC or anti-union. The high-handedness shown in order reflects a complete disregard for constitutional hierarchy and democratic functioning within the student organizations. Given the above facts and constitutional reasoning, I hereby demand the immediate revocation of order dated 24 July 2025, failing which I shall be compelled to seek judicial redressal and initiate appropriate legal proceedings against this unconstitutional, arbitrary, and defamatory action. This issue is not merely a personal affront, but an attack on the sanctity and autonomy of federating units and a dangerous precedent that threatens the democratic ethos of our student community. I hope wisdom and respect for constitutional procedures will prevail and this matter will be rectified promptly. We, the Cole Kamla District Student Union, under the leadership of Mr. Tam Romy Paul,
we firmly and we utmost respect to the Ansu, and we do acknowledge the contribution of Ansu toward the Nisi community. But today we are here with every heart that we are here to remind the people of Arunachal in general and particularly Nisi community how Mr. Legend Gyati misusing the power and position of Ansu. Not only misusing the power and position of Ansu, but he is also trying to misinterpret the Supreme Ansu Constitution. I will go with article by article how he cited wrong article in his order dated 24/7/2025, and I will clarify it in very short. आए दिन आप सबको पता है हमारा निसी के लिए कौन कितना क्या कर रहा है, और मिस्टर लेजेंड ग्याटी जब से अंशु प्रेसिडेंट बना है वो निसी को किस दिशा में ले जा रहा है और निसी को किस तरह प्रमोट कर रहा है। उनका इलेक्शन का प्रचार में उन्होंने तो ये कहा था कि जापान कोरिया को देख के ये निसी है बोलना चाहिए बोल के, ऐसे तो हमको सुंदर सुंदर सपना दिखाया था, लेकिन वो इलेक्ट होने का बाद निसी को किस तरह से प्रमोट कर रहा है हम लोग सभी मालूम है। तो हम ज्यादा नहीं कहते हुए सबसे पहला तो अभी तो ये 24 को उन्होंने अपना हद ही पार कर दिया कि मेरा प्रेसिडेंट ताम रोमी पोल ऑल कमला डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का, जो कि फाइन जेंटलमैन विथ इम्बिटियस एंड डिटरमाइंड लीडर हु इज सर्विंग निसी कम्युनिटी एज ए होल एंड कमला डिस्ट्रिक्ट एज in particular in his capacity as a president of Kamla District Student Union. Without any valid reason and without any constitutional article, वो जो अंशु प्रेसिडेंट जो हमारा प्रेसिडेंट को एंटी निसी डिक्लेयर करता है, वो अकेला वो भूल गया कि he is merely just elected to lead Nisi community just for 3 years. हमारा लेजेंड ग्याती ये भूल गया कि वो जो निसी का मालिक नहीं है। किसी निसी मेंबर को अगर एंटी यूनियन देने के लिए इंक्वायरी कमेटी बिताना पड़ता है, इसके बाद सबसे प्राइमरी बेसिक चीज तो शो कॉज नोटिस इन ऑर्डर टू प्रिवेल द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इतना तो पता होना चाहिए मिस्टर लेजेंड ग्याती को। इस ऑर्डर में ना इंक्वायरी है, ना शो कॉज नोटिस है, ना हमारा प्रेसिडेंट को मौका दिया है कि एक्सप्लेनेशन के लिए फर्स्टली। इसके बाद सेकंड में वो जो क्या बोलता है कि रिगार्डिंग द ऑल रागा दुलमुख काम्पोरो एरिया स्टूडेंट यूनियन, जो कि ऑल कमला डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट का डायरेक्ट फेडरल यूनिट है। क्यों फेडरल यूनिट हम ये अकात्सु जो अर्धक्कासु को क्लेम कर रहा है बोलने से, आर्टिकल पार्ट 9 आर्टिकल 39 क्लोज ए बी एंड क्लोज सी ऑफ ऑल रागा दुलमुख काम्पोरो एरिया स्टूडेंट यूनियन ये कहता है कि अकात्सु इज डायरेक्ट पेरेंटल बॉडी ऑफ अर्कात्सु। तो यहाँ में ऐसे भी लिखता है कि any internal dispute or conflict or misunderstanding within the Ardhakasu shall be intervened by all Kamla district students, not by external body. External body, it implies Ansu. तो यहाँ में मिस्टर लेजेंड ग्याती का कोई पावर, कोई हक नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनली कोई हक नहीं कि अर्धक्कासु का मैटर को लेके वो जो ऑर्डर पास करने के लिए और अर्धक्कासु को डिसॉल्व करने के लिए, वेयरएज मिस्टर लेजेंड ग्याती को अच्छा से पता है ऑल रागा दुलमुख काम्पोरो एरिया स्टूडेंट यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड 1 ईयर टेन्योर अभी तक बचा हुआ है। तो साथ ही साथ चलो डिसॉल्व भी कर दिया। फर्दर ये क्या करता है कि आर्टिकल 17 of the
अंशु कॉन्स्टिट्यूशन उसको साइटेड करके और अंशु लेजेंड ग्यादी जो अपॉइंट करता है, डिसॉल्व करने का बाद अपॉइंट करता है। वेयरएस आर्टिकल 17 में क्या बोलता है? आर्टिकल 17 ऑफ द अंशु ये कभी नहीं बोलता है कि अंशु प्रेसिडेंट जो है कि स्मूथली फंक्शनिंग बीएसयू को डिसॉल्व करके चेयरमैन अपॉइंट करना है टू कंडक्ट ए जनरल कॉन्फ्रेंस। चलो वो कॉन्फ्रेंस चेयरमैन भी अपॉइंट कर दिया, लेकिन आर्टिकल 17 क्या कहता है? अगर आप अपॉइंट करता भी है तो रिप्यूटेड स्टूडेंट एक्टिविस्ट को करना है, लेकिन यहां में ऐसे नहीं हुआ है। मिस्टर लेजेंड ग्यादी क्या करता है? एक्स टोर ऑपरेटर, एक टोर ऑपरेटर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिजाइन देके जब जब मौका मिलेगा स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन में जिंदा होने वाला आदमी को वो चेयरमैन अपॉइंट करता है। यहां में हम मिस्टर लेजेंड ग्यादी को ये पूछना चाहता है कि क्या हमारा अर्धकासु बेल्ट में स्टूडेंट एक्टिविस्ट कम पड़ गया क्या? सब मर गया क्या? तगे नादा है रिनाउंड स्टूडेंट एक्टिविस्ट फ्रॉम आर एरिया, कंसर्न एरिया, काबक हिमालय है, मिली तचक है, बहुत सारा स्टूडेंट एक्टिविस्ट है जो अपना बचपन से लेकर अभी तक स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए सेक्रीफाइस करके काम कर रहा है। उन सबको स्टूडेंट कम्युनिटी को सेवा देने का मौका नहीं देके जब चाहे गवर्नमेंट जॉब करेगा, जब चाहे पॉलिटिक्स करेगा, अपना बराबया अपना वेल विशर का टर्न पे ऐसे करने वाला को ऐसे अंशु प्रेसिडेंट वो खुद बोलता है कि अंशु प्रेसिडेंट के लिए सिर्फ 14 इयर्स रुका है बोलता है। उसको पता है स्टूडेंट एक्टिविस्ट, स्टूडेंट लीडर बनने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। तो वो खुद इतना मालूम होने का बाद भी इंटेंशनली यहाँ में टोर ऑपरेटर एक्स गवर्नमेंट सर्विसमैन को चेयरमैन अपॉइंट करता है। तो उसको हम लोग हमारा अंडर द लीडरशिप ऑफ ताम रोमी पोल बीइंग ए एपेक्स स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, हम लोग उसको नलीफाई, अभी तक नलीफाई ऑर्डर तो निकला नहीं है क्योंकि एपेक्स स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज में नहीं होगा तो ऑब्वियसली एवरीथिंग विल बी नल एंड वॉइड। तो अभी तक ऐसे कुछ किया नहीं है, लेकिन उसको रोंगपुल आर्टिकल को वो जो साइटेड करके हमारा प्रेसिडेंट को वो एंटी दिया है। एंड thirdly एंटी एंड एंटी यूनियन। यहाँ पे सबसे पहला रीजन टू अर्धकसु का इशू है, उसको हम बता दिया। लेकिन सेकेंड एलिगेशन जो सबसे फनीएस्ट थिंग, हमारा मिस्टर लेजेंड ग्यादी को क्या हो गया पता नहीं, सो पोस्ट नोटिस सेकेंड एंटी देने का सेकेंड रीजन जो है सो पोस्ट नोटिस टू हिज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर। आप सब बताइए, हम सपोज हम एक यूनियन का प्रेसिडेंट है, मेरा एग्जीक्यूटिव अगर मेरा यूनियन का इंटीग्रिटी सेंटिटी को हार्म करने के लिए एक्टिंग करेगा तो क्या हम उसको सो पोस्ट नोटिस लेजेंड ग्यादी को बता के देना है क्या? Whereas Legend Gyati is not Legend Gyati. Sorry, now he is representing Ansu. Ansu is not direct federal to us. We, the all Kamla District Student Union, is clear and direct federal to all Arunachal Pradesh Student Union, who is the apex student organization of our state. तो यहाँ में सो पोस्ट नोटिस दिया है बोल के ये एंटी निसीए बोलता है। अरे भाई, जब चाहे जहां कागज मिले उधर साइन करने से नहीं होगा ना, थोड़ा सा क्रॉस चेक कीजिए, थोड़ा अपना पावर एंड फंक्शन को भी अच्छा से यूटिलाइज करने के लिए कोशिश कीजिए। ऐसे बेहुदा बच्चा जैसे जब तक पेन में इंक के साइन करेगा बोलने से नहीं होगा ना। निसी समाज उसको गौर से देखना बहुत जरूरी है। एंड और सो पोस्ट नोटिस में whereas so post notice is internal matter of the our union अकत्सु, हम बताने तो नहीं चाहता है, लेकिन
इतना सिर्फ बताएगा कि सो कॉज नोटिस में भी कहीं पे भी अंशु का जिक्र नहीं किया कि तुम अंशु का साथ है, तुम लेजन ज्ञाति का साथ है, इसलिए हम लोग को, इसलिए यू में एक्सप्लेन योर सेल्फ, ऐसे कहीं में भी अंशु लेजन ज्ञाति का जिक्र नहीं किया है सो कॉज नोटिस में, जहां तक हम मालूम है। फिर भी सो कॉज नोटिस दिया बोल के एंटी निसीय बोलता है। दिस इज वेरी फनी। एंड साथ ही साथ में हम लेजन ज्ञाति को टीम आकाशु ऑल कमला डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन ये मांग करता है कि ये 4 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर आकाशु जिनको शो कॉज नोटिस दिया है, किसने आपको शो कॉज नोटिस को शो किया है, उसको आप बताना पड़ेगा हम लोग को। और अगर नहीं बता पाएगा तो हम लोग ये मान के चलेगा कि चारों का चारों लेजन ज्ञाति से मिला हुआ है। एंड इन दैट केस he or she will face on course of disciplinary action in further. Fourthly, और ऑर्डर में वेरी इंटरेस्टिंगली, पता नहीं मिस्टर लेजन ज्ञाति को क्या सोचता है, वो सिर्फ पढ़ने लिखने जानता है, उसका पास सिर्फ अंशु का कॉन्स्टिट्यूशन है। हम लोग देख के ऐसे मान लेगा, सोचा होगा आर्टिकल 3 क्लोज 15 एंड 16 को रिफ्लेक्ट करके एंटी डिक्लेयर करता है। वेरेस यहाँ में मेरा पास आर्टिकल 3 क्लोज 15 एंड 16 है, जो कि हम रीड आउट करके क्लियरिटी के लिए पुराना पढ़ के सुनाना चाहूंगा। आर्टिकल 3 अंशु कॉन्स्टिट्यूशन क्लोज 15 क्या कहता है? एंटी यूनियन मीन्स एनी पर्सन एंड मेंबर ऑफ द यूनियन who violate the decision and resolution taken by the union and further breach, infract and transgress against any order notification issued by the office of the union। आप लोग को क्या समझ में आता होगा पता नहीं। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ये क्लोज आर्टिकल 3 का क्लोज 15 अंशु कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि एनी पर्सन और मेंबर अंशु का डिसीजन को, डायरेक्शन, नोटिफिकेशन को वायलेट करेगा, वो नोटिफिकेशन भी निसी का इंटरेस्ट में होना पड़ेगा। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा ऑल कमला डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट मिस्टर ताम रोमी पोल कौन सा अंशु का मूवमेंट जो निसी का हित में अभी तक चलाया उसको हम लोग ने अपोज किया है। आई एम फेल टू अंडरस्टैंड। और साथ ही साथ में ये जो डिफिनेशन पार्ट है इन एनी वाई लो सिर्फ डिफाइन करता है, इट डज नॉट एम्पावर एनीवन टू टेक एक्शन। अगर आप सही मायने में एक एंटी निसी देना चाहता है तो हम लेजन ज्ञाति को आर्टिकल बताना चाहेगा, एप्रोप्रिएट आर्टिकल वो है आर्टिकल 9 क्लोज 5 जहां में अंशु वाइलो कहता है कि एनी पर्सन, एनी प्राइमरी मेंबर दैट इज निसी हु चैलेंज Anshu order and notification in any court of law, he or she shall be terminated and declared as anti-nisi, and he or she will lose his primary membership of the Anshu. ना यहाँ में अगर वो आर्टिकल 17 को भी साइटेड करता तो अच्छा लगता, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, आर्टिकल 3 क्लोज 15 एंड 16 को साइटेड करके एंटी डिक्लेयर करता है। ये तो डायरेक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यहां से हम सभी अंशु सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर अचिमय आराम कामधर, जनरल सेक्रेटरी अंशु, कन्वेनर ग्यामर माया जी, बीपी मिस्टर तादक लातक मोर्तम एंड ऑल द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर दैट की आप लोग में बीइंग ए लीडर ऑफ अंशु, जो कि लेजन ज्ञाति का समय में आप लोग भी अंशु कॉन्स्टिट्यूशन का
अंशु का केयर टेकर है। आप लोग भी ये मैटर को कोग्निजेंस में लेना है। कैसे आपका प्रेसिडेंट जो है अंशु कॉन्स्टिट्यूशन को भी अपना मन मर्जी मोकरी बना रहा है, पब्लिक का सामने में मजाक बना के रख रहा है, उसको भी आप लोग चेक एंड बैलेंस कीजिए। अंशु सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर, यहां में डर के बैठना जरूरी नहीं है। अचित तो तुम क्या कहता है, अतुर्दत जरूरी मा हिंदर तो निसी बोलता है। टाइम टू रिफेन आवरसेल्फ। लेजेंड ज्ञाति जैसे एक आदमी पूरा निसी समाज को मजाक बनाते रहेगा, हम लोग सुनते रहेगा, वो अच्छा बात नहीं है। इसके बाद में लास्टली हम मिस्टर लेजेंड ज्ञाति को ये बताना चाहता है कि आप सबसे पहले कौन किसका पेदरल है, कौन किसका पेरेंटल है, उसको आप अपना लीगल एडवाइजर को बुला के सिर्फ 1 घंटा निकाल के अपना अंशु कॉन्स्टिट्यूशन, अपसु कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार गो थ्रू कीजिए बोल के मिस्टर लेजेंड ज्ञाति को रिक्वेस्ट करना चाहेगा। और साथ ही साथ इसी के साथ में हमारा ऑल कम्युनिटी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का डिमांड ये है कि विदिन 3 days आफ्टर दिस प्रेस रिलीज मिस्टर लेजेंड ज्ञाति वो रिवोकेशन करना पड़ेगा उसका एंटीनिसी ऑर्डर को। साथ ही साथ में या तो एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, होश और आवाज में किया है ना, ऐसे ही बोल खेलते खेलते साइन मार दिया, उसको भी वो बताना पड़ेगा। अंशु कॉन्स्टिट्यूशन को यहां में टोटली मजाक बना के रखा है। रिपीटेडली cited the wrong article for taking action, जबकि करेक्ट आर्टिकल को अगर वो साइटेड करता, हम लोग भी थोड़ा सा ये क्या सोच के किया है पूछना भी था। यहां में नॉट ओनली माय प्रेसिडेंट मिस्टर ताम रोमी पोल, पूरा निसी समाज उसको क्वेश्चन करना है, क्या समझ के कर रहा है। All yes, we do respect Mr. Legend Gyati as a ANSU president for 3 years, but we do not acknowledge him as a owner of the NISI. जब चाहे किसी को एंटी डिक्लेयर करके बैठेगा। ओ लगा बे मुल निसी लोबिंग दो संतुंग पदुंग निर पलेक संसुंग gyumdung sel gyum ka pato no Legend Gyati bono अंशु का प्रेसिडेंट निसी को तुपमने लमता कातमला दुम्पो काबुलो सिर देवहन जिंगा अल लमतांग पाग मावे कैसे करके नो जो या में किसको भी या में तो किसको अच्छा नहीं लगता है उसको एंटी करेगा, किसको अच्छा नहीं लगता है साइन करके बैठेगा। आपका वो जो निसी को यूएन लेवल तक ले जाने का सपना यही में सीमित रह गया क्या? और अंशु प्रेसिडेंट का साइन जो इतना ही वैल्यू रह गया क्या, जो अपना भाई बहन जो अच्छा काम करता है उसको एंटी देने के लिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। हो लगा वो सो प्लेटफॉर्म सो का एनईएस निसी इलाइट सोसाइटी का प्रेसिडेंट अचिताना सोरेन hari maring nul melingam kamu kumna nul kanam tasa katla kama panama nyitu maduyo si Legend Gyati bosi nisi ke image amne hakam ko tarnis mato nul kato examine mato ngulam palo malo nga nisi samajam sija nyirchla do kubu nyirma pata nyirma nga nyirchla do Legend Gyati by what authority निसी को मोकरी बनाने के लिए वो देता है? भले ही ताकत होता होगा, लेकिन उसको सबसे पहले निसी कौन क्या है समझना पड़ेगा। हमारा अंशु कितना अच्छा लीडर को जन्म दिया है, राइट फ्रॉम तकम संजय टू नावंग तो तुम वो अभी कल इलेक्ट होने के बाद में एटलीस्ट खुद को तो मत सोचो ना। इतना बड़ा कितना बड़ा बड़ा आदमी लोग सेक्रीफाइस करके अच्छा लीडर लोग ये अंशु प्लेटफॉर्म को इस लेवल में लाने के लिए सेक्रीफाइस किया। उन सबको वो मायने में नहीं रख के मन मर्जी करके बैठता है। एंड विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंटली रेसेंट एंड वी डू एक्सपेक्ट फॉर अर्ली response from
the Mr. Legend Gyati. Thank you so much.